Today's topic is replication. So, first of all, let us understand the meaning of this word replication. Replica means to make its copy. Means we are talking about the structure of DNA, and DNA replication means DNA during the cell division makes its copy. Now, the question comes, why there is need of DNA replication? As we know that when a cell divides, either it divides by the process of mitosis or it divides by the process of meiosis. And whenever cell division occurs, what will happen? There will be distribution of DNA in both the daughter cells. और जब DNA का distribution daughter cells में होना ज़रूरी है तो उससे पहले क्या होगा, अगर सेल को अपनी जो कॉन्स्टेंसी को मेंटेन रखना है तो क्या ज़रूरी है कि DNA अपनी कॉपी बनाए. So DNA replication is necessary. Now, as we know that the structure of DNA, which is double helical structure, and it was given by Watson and Crick. And when Watson and Crick, they proposed their models, they also said that DNAs, they said in the particular statement they have given that it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material. इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो कह रहे हैं कि जब हमने डीएनए के डबल हेलिकल को के स्ट्रक्चर को पढ़ा है तो ये भी हमारे माइंड में चीज़ आई कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पर कुछ कॉपिंग मैकेनिज़्म है जो कि उस जेनेटिक मटेरियल को कॉपी कर रहा है. तो यानी कि डीएनए जो है इसकी रेप्लिकेशन हो रही है. नाउ एज वी नो डीएनए इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. डबल हेलिकल हैं यानी कि इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं. अब जब डीएनए रेप्लिका बनाता है तो जो उसके जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, दे विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड as it is shown here in the diagram also. This is the double helical structure of DNA, and as we are seeing here that when this is shown by the red color, these 2 strands they are separate हो गए हैं. अब उस DNA के strands के साथ में पर्पल कलर में जो शो किया गया है दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. यानी कि एक स्ट्रैंड ने, ये यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर द 2 स्ट्रैंड्स. जब एक सेल डिवाइड होती है स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद में ये जो है एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा जिसे हम क्या कहेंगे, दिस is the structure of DNA. 2 strands, these are the 2 strands, they have got separated. Now this DNA it will synthesize its copy. तो जिस स्ट्रैंड के जैसी कॉपी बन रही है तो यहाँ पर जो ये स्ट्रैंड है इट इज़ कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो कॉपी बनेगी अब दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. So we can say that DNA it replicates, it forms its copy, then each DNA molecule will have one parental and one newly synthesized strand. तो यानी कि जब भी एक सेल डिवाइड हो रही है तो उस सेल के अंदर जो डीएनए होगा उस डीएनए के अंदर एक तो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होगा और दूसरा डीएनए ने अपना जो स्ट्रैंड है वो क्या किया है, सिंथेसाइज्ड किया है. And this is also necessary for the evolution purpose also, because we know that when new strands are synthesized new characters are added and there is new characters are produced in the body of living organisms. So replication it is proposed by then DNA structure was proposed by Watson and Crick, and then they said that there is something which is happening and that is the replication of the DNA copy. Now as we have talked that there are 2 strands, one strand is acting as a template strand and other newly synthesized strand it is known as complementary strand. So we can say that the DNA is semi conservative in nature. Why it is called semi conservative in nature? क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रैंड कहाँ से आया, पेरेंटल, और दूसरा स्ट्रैंड क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है. यानी कि एंड दैट्स वाई इसको क्या कहा गया है, हमने क्या कहा, सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि बिकॉज वन स्ट्रैंड इज पेरेंटल स्ट्रैंड एंड द सेकेंड स्ट्रैंड इट इज़ न्यूली सिंथेसाइज्ड, सो इट इज़ कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. Now if we talk about the semi conservative nature of DNA replication, then we talk about the bacteria E. coli and it was also considered in the other higher organisms also and even in the humans also, human cells also.
मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टैल ने एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, ई कोलाई को लिया। अब ई कोलाई को उन्होंने लैब के अंदर कल्चर प्लेट में ग्रो किया। कल्चर प्लेट में हम न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करते हैं। क्या किया इन्होंने, मैसेल्सन और स्टैल ने उस कल्चर प्लेट के अंदर जो न्यूट्रिएंट मीडियम लिया, उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर उन्होंने क्या ऐड कर दिया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ जो नाइट्रोजन थी N15 ली गई, जो कि क्या है, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। सभी को पता है आइसोटोप, तो नाइट्रोजन का जो आइसोटोप लिया गया 15, और जो N15 है ये एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। अब जब वो ई कोलाई उस कल्चर मीडियम में ग्रो हुए जहाँ पर अमोनियम क्लोराइड थी, जिसकी नाइट्रोजन क्या थी, N15, जो कि एक हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। अब क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है वो अपने न्यूट्रिएंट मीडियम से वेरियस मॉलिक्यूल्स लेता है, तो जो अमोनियम क्लोराइड था उसके अंदर जो N15 था वो ई कोलाई की जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स थी उनके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, यानी उनके अंदर एंटर कर गया। और इस तरह से जो ई कोलाई जिन्होंने अपना नया स्ट्रैंड बनाया, उन स्ट्रैंड्स के पास जो डीएनए है उसके पास क्या चला गया, N15 उनकी सेल्स में एंटर कर गया। नाउ बिकॉज N15 इज़ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, सो जो डीएनए मॉलिक्यूल थे वो भी क्या हो गए, हैवी हो गए। अब हमें कैसे पता चला, या हम कैसे, या वो लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये हैवी हो गए हैं, इसके लिए एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए क्या लिया गया, सीजियम क्लोराइड। नाउ व्हाट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जब हम हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, क्योंकि अब N15 जो था दैट इज़ अ हैवियर आइसोटोप, तो जो डीएनए है वो भी क्या हो गए, हैवी हो गए, यानी डीएनए की जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नाउ फर्स्ट इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने सेकंड कंडीशन कंसीडर की। अब उन्होंने उन जो सेल्स जिनके पास N15 था उसे एक न्यू कल्चर प्लेट में ट्रांसफ़र किया, लेकिन वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी कि ये कल्चर प्लेट है, इस कल्चर प्लेट के अंदर क्या लिया गया, ई कोलाई। लेकिन यहाँ जो ई कोलाई थी उसके पास क्या था, N15, लेकिन यहाँ N15 किस में प्रेजेंट था, उनके डीएनए के अंदर। लेकिन यहाँ इन्होंने जो ई कोलाई सेल्स ली और जो न्यूट्रिएंट मीडियम लिया, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या ऐड कर दिया गया, N14, जो कि क्या है, आइसोटोप ही है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, लाइटर है। अब ई कोलाई जिनके पास N15 था उन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, कौन से न्यूट्रिएंट मीडियम पर, जहाँ पर N14 है। और उन्होंने क्या देखा, जब सैंपल्स को फिर से सेपरेट किया गया, डेंसिटी ग्रेडियंट से सेंट्रीफ्यूगेट किया गया सीजियम क्लोराइड के अंदर, तो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, जो ये हमारा डायग्राम है इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन, सी दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन जिसमें उन्होंने ई कोलाई के डीएनए को शो किया हुआ है N15, क्योंकि हमने किस तरह के कल्चर मीडियम में ग्रो किया था, N15 वाले कल्चर मीडियम में। अब ई कोलाई जो है 20 मिनट्स इट इज़ शोन, क्योंकि जो इसका रिप्रोडक्टिव फेज़ यानी मल्टीप्लिकेशन फेज़ है वो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। और क्या ऑब्ज़र्व किया गया कि जो डीएनए, अब हमें पता है कि डीएनए के स्ट्रैंड्स यहाँ सेपरेट हुए, और सेपरेट होने के बाद इन्होंने अपनी कॉपी बनाई, सो दीज आर द रेप्लिकाज। लेकिन जब कॉपी बनी तो फर्स्ट स्ट्रैंड जो कि क्या था, पेरेंटल था, वो क्या रहा, N15 रहा। लेकिन जो सेकंड स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड हुआ, क्योंकि वो किस तरह के कल्चर मीडियम में ग्रो हुआ, 14 में, N14 में, तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड था उसके पास क्या आ गया, N14। सो एज वी आर एबल टू सी हेयर ऑल्सो दैट जो रेड कलर्ड में है ये हैवी नाइट्रोजन N15 है, और क्योंकि ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गए थे, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है दे आर शोन बाय ग्रीन कलर, तो यहाँ पर N14, यानी जो डीएनए यहाँ सिंथेसाइज हुआ, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स यहाँ शो कर रखे हैं, फर्स्ट डीएनए एंड दिस इज़ द सेकेंड डीएनए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रेड जो डीएनए स्ट्रैंड है इट हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स,
और जो ग्रीन कलर स्ट्रैंड है ये सिंथेसाइज्ड हुआ है क्योंकि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। और ये किस तरह का बना, N14 टाइप। क्यों? क्योंकि ये उस तरह के न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर रहा था। यहाँ पर हमारा ये जो पढ़ने का क्या पर्पज़ है, ये शो करना कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। वन डीएनए स्ट्रैंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट एंड अदर इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। सो अब आफ्टर 40 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट्स क्यों? क्योंकि ई कोलाई का जो रेप्लिकेशन ड्यूरेशन, रेप्लिकेशन मीन्स वी कैन से जो मल्टीप्लिकेशन पीरियड है दैट इज़ 20 मिनट्स। तो हमने 40 मिनट्स बाद क्या देखा, 40 मिनट्स में 2 साइकिल्स कंप्लीट हुई। नाउ अब हम यहाँ हमारे पास देयर आर 4 कंडीशंस। कौन कौन सी 4 कंडीशंस है? बिकॉज वी विल कंसीडर दीज 2 स्ट्रैंड्स। हम इन स्ट्रैंड्स को कंसीडर करेंगे। सो 1, 2, 3 एंड 4, इनमें से जो हैं दिस इज N14, दिस इज ऑल्सो N14 एंड दिस इज N15, दिस इज N15। यानी हमारे पास 4 स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ N14 DNA एंड 2 स्ट्रैंड्स ऑफ N15 DNA एज इट इज शोन हेयर ऑल्सो। दिस इज N14, then N14, N15, N15. Now what these DNA strands will do? They will form their copies as they have formed their copies here. और जब ये कॉपी बनाएंगे तो क्योंकि ये किस तरह के कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, 14 में, अभी भी इनको हमने किस तरह में ट्रांसफ़र करना है, N14 में ही। सो जो सेकेंड स्ट्रैंड बनेगा इट विल ऑल्सो बी ऑफ N14। हेयर यहाँ N15 था लेकिन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड N14, here also newly synthesized strand N14 and in the next also newly synthesized strand is of N14। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो DNA है इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। और सेमी कंजर्वेटिव नेचर में होने के मीन्स है कि वन स्ट्रैंड इज़ फ्रॉम द पेरेंट एंड द अदर स्ट्रैंड इज़ न्यूली सिंथेसाइज्ड। और इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए मैसेल्सन और स्टैल ने इन ई कोलाई बैक्टीरियाज को ग्रो किया उस न्यूट्रिएंट मीडियम में जहाँ पर N15 और N14 एडेड थी। और क्या देखा गया कि अगर 15 से हमने स्टार्ट किया तो जो 15 और 14 के बाद में उनको हमने नेक्स्ट कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया तो जो DNA है वो उस तरह की ही आइडेंटिटी शो कर रहा है। नाउ हियर व्हाट इज़ रिटन, N14, N15, यहाँ जो क्या था पेरेंटल स्ट्रैंड थे N15, इनको जब हमने ग्रो किया 14 में, वन स्ट्रैंड क्या हुआ पेरेंटल एंड द अदर स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड। सो दिस इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिड। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो है 2 क्या रह रहे हैं, हाइब्रिड रह रहे हैं। अब उन्हें कैसे पता चला कि ये हाइब्रिड है, क्योंकि डीएनए तो हमें इस तरह से नज़र नहीं आता। तो उसी के लिए उन्होंने उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स कि रोटेटिंग एट हाई स्पीड एंड द डेंसर पार्टिकल्स दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स विल फ्लोट। और इस तरह से जहाँ पर वो कलेक्ट हो रहे थे उन्होंने वहाँ पर कलर बैंड्स शो किए एज इट इज़ शोन इन दिस डायग्राम ऑल्सो, कि जब इनकी ये डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन की गई है, अगर N14 है तो वहाँ पर लाइट बैंड शो हो रहा है। इफ़ इट इज़ N14, N15 यानी हाइब्रिड है, सो यहाँ पर जो बैंड है इट इज़ डार्क इन कलर। सो बाय दिस they prove that DNA is semi-conservative in nature. Now this DNA which was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, तो हमने क्या देखा यहाँ, जब हमने N14 से, ये N15 है, N15 से इनको किस मीडियम में ट्रांसफ़र किया, N14 में हमने ट्रांसफ़र किया और जो हमें मिला वो क्या हुआ, एक हाइब्रिड हुआ। फिर इस डीएनए को यहाँ से फिर एक्सट्रैक्ट किया और फिर जो है हमने फिर इसे N14 में किया तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला कि जो 2 हैं वो N14 और 2 हमें क्या मिले, हाइब्रिड मिले। एज वी आर एबल टू सी हेयर इन द डायग्राम ऑल्सो कि जो हमने सेकेंड क्रॉस किया तो यहाँ पर 2 हमें N14 और जो 2 हमें मिले वो क्या मिले, हाइब्रिड मिले। सो यानी व्हाट वी कैन से, चाहे अब इनका हम 1000 बार क्रॉस यानी 1000 जनरेशन्स को अगर हम स्टडी कर लें,
लेकिन हम क्या देखेंगे कि क्योंकि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है तो किसी ना किसी डीएनए स्ट्रैंड में क्या होगा, N15 प्रेजेंट रहेगा because it is semi conservative in nature. Now the similar experiments were performed by taking, this was the bacteria, E. coli bacteria को consider करके किया गया. Later on many of the experiments were performed by considering another radioactive substances like thymidine. जब थाइमेडीन को जो है लेकर के इसमें कल्चर मीडियम में और हमने स्टडी किया विसिया फेबा, यानी फेबा बीन्स हैं ये एक तरह की, और उनके जब डीएनए को सिंथेसाइज्ड किया एंड इट वाज स्टडीड बाय टेलर एंड इट्स कलीग्स इन 1958 एंड द सेम रिजल्ट वाज गिवन बाय टेलर एंड इट्स कलीग्स आल्सो which has proved that DNA in chromosomes, it is semi conservative in nature, it replicates whether it is plants DNA or it is animals DNA. Now the next topic is the machinery and the enzymes. अब तक हमें क्या पता चल गया कि जो DNA है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, यानी सबसे पहले तो डबल हेलिकल है. जब सेल्स डिवाइड होती हैं स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं. दिस स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड एज पैरेंटल स्ट्रैंड, इसे हम टेम्पलेट भी बोल सकते हैं. जब ये नया स्ट्रैंड बनाएगा इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव, तो वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. लेकिन किसी भी डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए हमें क्या चाहिए, मशीनरीज चाहिए या फिर एंजाइम्स चाहिए. सो क्या किया जाएगा कि व्हाट आर द मशीनरीज और व्हाट आर द एंजाइम्स फॉर दिस प्रोसेस और रेप्लिकेशन. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द ई कोलाई. ई कोलाई में क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, तो बहुत सारे कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स की ज़रूरत होगी. जो मेन एंजाइम है उसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज. नाम से ही पता चलता है पॉलीमर्स मीन्स उसकी मैनी यूनिट्स, और क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड पर टेम्पलेट पर नया डीएनए बन रहा है सो द नेम ऑफ द एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज. नाउ व्हाट विल हैपन, डीएनए टेम्पलेट पर पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड. क्या मीनिंग है इसका, हम इसे एक स्ट्रेट चेन कंसीडर कर लेते हैं. सपोज इट इज़ अ डीएनए टेम्पलेट. अब यहाँ पर इस डीएनए टेम्पलेट पर एक और डीएनए स्ट्रैंड बनना है. ये डीएनए स्ट्रैंड कैसे बनेगा, जब यहाँ पर क्या ऐड होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे. मीन्स दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड. नाउ वी हैव टू मेक द अनदर चेन. सो क्या होता जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होकर के जब ज्वाइन हो जाते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनते जाएंगे, और इस तरह से सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंप्लीट हो जाता है. तो यानी कि डीएनए टेम्पलेट पर क्या हो रही है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीएनए बन रहा है. डीएनए का स्ट्रैंड, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स. तो क्या ज्वाइन होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. इन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनाने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज. Now if we talk about the particularity of these enzymes, they are very particular and they are highly efficient also. वो इतने ज़्यादा efficient हैं कि in a short duration of time they are able to polymerize large number of nucleotides. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बहुत थोड़े से टाइम में ही जो है वो क्या हो जाते हैं, पॉलीमराइज यानी जुड़ जाते हैं. If we talk about the E. coli, ई कोलाई के पास जो बेस पेयर्स हैं दैट इज़ 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स. और अगर ह्यूमन बींग्स के साथ हम कंपेयर करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के पास जो बेस पेयर हैं दैट इज़ 6.6 इंटू 10�9 बेस पेयर्स. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ई कोलाई जो है वो अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है विद इन 18 मिनट्स. इट मीन्स कि जो उनका एवरेज पॉलीमराइजेशन रेट है दैट इज़ 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. एक सेकेंड के अंदर ई कोलाई जो है वो 2000 बेस पेयर्स ऐड कर देती है. एंड दैट इज़ पॉसिबल. इतना ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट रिएक्शन किसके कारण हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. अब जो ये पॉलीमरेज हैं इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि दीज आर वेरी फास्ट, बहुत फास्टली इस रिएक्शन को करते हैं. एंड सेकेंडली द रिएक्शन इज़ वेरी एक्यूरेट ऑल्सो. अगर ये एक भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करने वाली जगह पर कोई मिस्टेक कर देते हैं तो पूरी की पूरी जो डीएनए चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है. सो एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन विल रिजल्ट इनटू म्यूटेशन. और हमने क्या पढ़ा अपने प्रीवियस चैप्टर में
कि अगर डीएनए की सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज को बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही एक्यूरेटली वर्क करना होता है पॉलीमराइजेशन करने के लिए या न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए। सेकेंडली, रेप्लिकेशन जो है इट इज़ अ वेरी हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस, और एक्सपेंसिव मीन्स इट इज़ इन द नीड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब आप इस नेम को लर्न करेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ये डुअल पर्पस यानी कि 2 फंक्शंस करता है। एक फंक्शन क्या है कि इट इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन, एंड इसके अलावा ये क्या करेगा, इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट ऑल्सो। तो सबस्ट्रेट के जैसे भी एक्ट करेगा और एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। Now we have talked about the 2 biomolecules. One is DNA polymerase and the second is deoxyribonucleoside triphosphate, जो कि किस में हेल्प कर रहे हैं, रेप्लिकेशन में। इसके अलावा जो है देर आर मेनी ऑफ द एंजाइम्स विच हेल्प इन कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल्स की बात करें, लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स की, तो वहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स हैं। एज वी नो डीएनए इज डबल हेलिकल इन स्ट्रक्चर। सो जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो 2 स्ट्रैंड्स की जो पूरी एंटायर लेंथ है वो एकदम सेपरेट नहीं हो सकती। दीज आर द 2 स्ट्रैंड्स, और इनको हम एकदम सेपरेट नहीं कर सकते इस तरह से। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट होने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सो यहाँ पर क्या ज़रूरी है कि जब डीएनए है, डीएनए को सब ज़रूरी तो क्या है रेप्लिकेशन के लिए कि ये सेपरेट हों, तो इनके सेपरेट होने के लिए एक कट डेवलप किया जाता है और उस कट को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। सी दीज आर द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब ये 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आपस में जुड़े हुए हैं नाइट्रोजिनस बेसिस से। सो क्या ज़रूरी है कि इनको सेपरेट किया जाए, कट किया जाए। यहाँ पर जो कट डेवलप हो रहा है दिस इज़ नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। आप लोगों ने फॉक स्पून देखी होगी जिसमें आगे से कट इस तरह से होते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या ज़रूरी है कि रेप्लिकेशन फॉक डेवलप किया जाए। अब ये जो रेप्लिकेशन फॉक किस तरह से डेवलप होगा, मीन्स कि स्मॉल ओपनिंग की जाए डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर की। सो this is necessary because long DNA molecules, DNA cannot be separated in its entire length. So replication तभी अकर होगी जब DNA स्ट्रैंड सेपरेटेड होंगे। सो क्या होगा, स्मॉल कट विल डेवलप एंड दैट इज़ कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क। अब यहाँ पर जो DNA डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसकी हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ये चेन है किसकी, डीएनए स्ट्रैंड है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और एक चेन बनती जाएगी। अब कौन ऐड कर रहा था, हमने पढ़ा कि डीएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है वो ऐड करता है किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर, और चेन आगे बढ़ती जाती है। सो व्हाट इज़ नेसेसरी दैट डीएनए पॉलीमरेज जो रिएक्शन है वो एंजाइम एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है एंड दैट डायरेक्शन इज़ 5' to 3'। अब ये क्या है, हमने पढ़ा जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा कि डीएनए की जो है पोलैरिटी, इफ़ दिस इज़ 5' एंड देन दिस विल बी 3' एंड। तो यहाँ पर जो डीएनए है वो न्यू चेन्स जो हैं वो किस सीक्वेंस में ऐड करेगा। सपोज दिस इज़ अ स्ट्रैंड and if it is 3' end then it will be 5' end। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक डायरेक्शन में ही क्या करता है, डीएनए पॉलीमराइजेशन करता है। सो इट इन वन डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज़ फ्रॉम 5' to 3'। मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ऐड होंगे और चेन इस तरह से आगे की तरफ बनना शुरू हो जाएगी। सो the reaction is continuous. On one strand, the replication is continuous, while on the other with the polarity 5', 3', it is discontinuous. So we are able to see in the diagram, यहाँ जो हम डायग्राम के अंदर क्या देखेंगे, this is the replication fork. ब्लू कलर में जो शो कर रखे हैं these are the strands of the DNA. This is the 5' strand and this is the 3' strand. अब
क्या होना है, डीएनए के एक स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके और न्यू चेन ऑफ डीएनए सिंथेसाइज होनी है। और वो जो न्यू चेन ऑफ डीएनए सिंथेसाइज होती है तो वहाँ पर जो एंजाइम हेल्प कर रहा है दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। और वो एंजाइम की क्या स्पेशलिटी है कि वो किस डायरेक्शन में ही ऐड करेगा, 5-3' डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस। जबकि जो दूसरी तरफ, while on the other hand the template with 5-3' polarity, यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये टेम्पलेट है जिसकी जो पोलैरिटी है 5-3', यहाँ पर जो डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस। क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं, स्ट्रैंड तो सिंथेसाइज हुआ लेकिन बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। लेकिन डीएनए के अंदर स्पेस तो अलाउड ही नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर इस डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स के गैप्स को ख़त्म करने के लिए वन मोर एंजाइम विल एक्ट विच इज़ नोन एज डीएनए लाइगेज। लाइगेज जो है वो फेविक्विक या फेविस्टिक का काम करता है, जो इस डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड के बीच के जो गैप्स हैं उनको ख़त्म कर देगा। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, then deoxyribonucleoside triphosphates. These are the enzymes which are helping in this replication process. Now this DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication. ऐसा नहीं है कि DNA polymerase जो है वो खुद से ही replication शुरू कर देगा। replication ना ही किसी भी place पर शुरू हो जाती है। Means we have to keep these two things in mind, that replication will not take place at any place of the DNA and DNA polymerase जो है वो अपने आप ही replication नहीं करता है। सो क्या है कि वहाँ पर एक डेफिनेट रीजन होगा। अगर हम ई कोलाई की भी बात करें तो जहाँ एक जो ई कोलाई का डीएनए है वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेस प्लेस होगा जहाँ पर क्या होगी, रेप्लिकेशन शुरू होगी, एंड दैट रीजन इज़ नोन एज ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो हर एक डीएनए के पास रेप्लिकेशन के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेस होगा जहाँ पर रेप्लिकेशन शुरू होगी। एंड बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स रिक्वायर्स अ वेक्टर। यस, अब देखिए बेटा, जो डीएनए है ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, कहीं पर भी रेप्लिकेशन शुरू नहीं हो जाती, कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा जहाँ पर रेप्लिकेशन शुरू होगी, जिसे हमने क्या नाम दिया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ पर क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है इट इज़ दैट अ पीस ऑफ डीएनए, यहाँ पर हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एंड द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जो वेक्टर है वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करेगा। इस चीज़ को, कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डीएनए है, हमने अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, सपोज ये एक नेचुरल डीएनए था किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसमें हमने कोई नए कैरेक्टर्स ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक डिज़ायर्ड डीएनए, एक फॉरेन डीएनए लेंगे, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस से कट करेंगे और उसे यहाँ ला करके इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन जो हमारा फॉरेन डीएनए था जिसे हमने लिया और उसे हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में ट्रांसफ़र किया, अब ये डीएनए ओरिजिनल नहीं रहा, ये क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम इस डीएनए को इस तरह से डायरेक्ट ही होस्ट की बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, एक फॉरेन डीएनए होगा, एक होस्ट होगा और एक वेक्टर। सी 1 2 3, दिस इज़ फॉरेन डीएनए, दिस इज़ द होस्ट डीएनए जिसकी बॉडी में हमने इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन हम फॉरेन डीएनए को डायरेक्ट होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम क्यों करना चाहते हैं होस्ट की बॉडी में, क्योंकि हम इसे रिकॉम्बिनेंट बनाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू ऐड द न्यू कैरेक्टर्स इन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड दैट्स वाई वी विल मेक द चेंजेस इन द डीएनए एंड वी विल मेक इट रिकॉम्बिनेंट। सो व्हाट वी विल डू, हम फॉरेन डीएनए लेंगे, first it will be transferred to the body of vector and this will be transferred to the body of
होस्ट, तभी जो है डीएनए क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो दिस इज़ द वेक्टर। वेक्टर क्या करता है, जो उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द डिजीज़, मलेरिया में हमने बात की तो वहाँ पर जो मॉस्किटो है वो किसका काम कर रहा था, वेक्टर का। किस लिए, क्योंकि वो पिक कर रहा था प्लाज्मोडियम को एंड इट वाज ट्रांसफरिंग। सो वेक्टर का काम करता है यहाँ पर, यानी वी विल बी इन द नीड ऑफ अ वेक्टर जो कि क्या करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करेगा। दिस फैक्टर now it will provide the origin of replication here. इसके अलावा रेप्लिकेशन के बारे में वी डो नॉट हैव ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है इट टेक्स प्लेस एट द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th डिवीजन ऑफ सेल दैट इज़ बाय माइटोसिस और मियोसिस, और वहाँ पर हमने पढ़ा था एस फेज़। उसके बाद हमने पढ़ा था एम फेज़ जिसमें माइटोसिस या मियोसिस होता है। तो इन एक्चुअल डीएनए का जो रेप्लिकेशन है इट टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा एंड सेल डिवीजन, ये दोनों ही बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस हैं। यानी व्हेन ए सेल इज़ रेडी टू डिवाइड एंड इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट इट्स डिवीजन प्रोसेस, मीनवाइल द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज टेकिंग प्लेस। सपोज फेलियर इन द सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, अगर सेल डिवीजन नहीं हो पाती और डीएनए ने अपनी रेप्लिकेशन कर ली, कॉपी कर ली, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी पॉलीप्लॉइडी, मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल, और इंक्रीज इन द डीएनए मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द क्रोमोसोम, और ये जो कंडीशन है इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।